Hello, myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, very good morning to all my students or my subscribers, all my channel viewers. Thank you for your lovely support. Okay, so without your support, this channel can't be grown up. So, thank you to all of my students, to all of my subscribers, and all of my viewers, those who have supported me a lot. Okay, so just keep supporting me just like that. Okay, so then I will make these videos and I will prepare this kind of lectures again and again in the nearest future also. Okay, so in this lecture we are going to cover very important and very tough topic also. Okay, the greatest and the modulus function, domain and range. Okay, it is for the class 11th and for 12th. This lecture is very important. So just all the 12th class students and all the 11th class students should view these lectures properly. And regarding this lecture, and on the basis of this lecture, your idea and your knowledge will be built up for getting succeeded in the IIT and JEE exams. Okay, so this on this lecture, just you will see the various questions and various things will be introduced in the future whenever just we will discuss the IIT and JEE exams questions and the solutions as well. Okay, so this lecture is very important for each and every student. Okay, so domain and range, in the last lecture I think the greatest integer function and the modulus functions were discussed. Okay, so regarding that discussion, just we are going to cover the different questions and the different functions including this mod and this greatest integer function, and we have to find the domain and range of that particular function. Okay, so आप लोगों को अगर लेक्चर्स, ये वीडियोस, ये सब पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग को ये रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप यहाँ पर क्लास एंजॉय कीजिए. हाँ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा. मेन एडवांस का भी क्लास चल रहा है, तो मेन एडवांस का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको. और I will prepare the DPP also, but I have no book. I am stuck in another place, and that's why I have no book here and no materials here, and that's why I am not I am not able to prepare the DPP right now. Okay, but I am providing the various solutions. Almost 100 to 150 solutions were already provided to all my students. Those who are those who are the aspirants of this IIT and JEE exams. Okay, so in this video, just you have to see the lecture properly. You have to attend the class regularly, and you have to view this lecture fully. The whole lecture should be seen, so that you can gather the knowledge regarding this modulus and the greatest integer functions, and for this JEE main and advanced level exams. Okay, so just write the first question. Just write the first question. Just write the first question. Find the domain of. Just write the first question. Find domain of fx equals to 1 by root over x minus mod of x. 1 by root over x minus mod of x. तो यहां पर देखो फ्रैक्शन तो दिखाई दे रहा है यहां पर, है कि नहीं? फ्रैक्शन होने से तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो तो जीरो नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है. जीरो नहीं हो सकता है यहां पर. जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, जीरो यहां पर नहीं हो सकता है. ओके, अगर यहां पर जीरो हो जाए, x माइनस मोड ऑफ x, x का वैल्यू कुछ भी हो. ओके, जैसे x का वैल्यू तुमने यहां पर जीरो पुट कर दिया, जीरो माइनस मोड जीरो, आंसर इज जीरो. दैट मींस x का वैल्यू आप लोग यहां पर जीरो पुट नहीं कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड. सो दिस डिनोमिनेटर पार्ट नेवर विल बी जीरो. इफ
this 0 is coming, then this fraction will be undefined. That means infinity. The answer will be infinity. And in the function fx can be indefinite and can be undefined as well. Okay, so at first let us see what are the characteristics of the function. That means of this part. Okay, here just write this line here x minus mod of x. According to the definition of modulus function, modulus function का definition हम लोगों ने लिखा है. modulus function का जो greatest integer function, ये दोनों हम लोगों ने एक लेक्चर में डिस्कस किया है. डेफिनेशन में जाओ, देखो प्लस एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0. ये तो mod x का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं. सो दैट मीन्स यहां से देखो x माइनस मॉड ऑफ x की जगह प्लस एक्स लिख सकते हैं. कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो जाए. जस्ट सी दिस प्रॉपर्टी. ओके ओके 0, that means x equals to 0. Then the next part is x minus of x when x less than 0. Okay, now here we are saying that three properties are coming. Just remember this word here. This if you solve these things, x minus x, that is 0. Okay, x greater equals to 0, because this part is also 0, right? This part is also 0 है कि नहीं? तो दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए भी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी आंसर इसका 0 आ रहा है. x इक्वल्स टू 0 जब पुट करोगे तब भी 0 आ रहा है, तो तब ग्रेटर इक्वल्स टू 0 तो चूज कर सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल पुट करो. तो यहाँ पर जैसे सपोज 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0 आ रहा है ना, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, 3 माइनस 3 0 आ रहा है, 4 माइनस 4 0 आ रहा है, और 0 भी पुट करें 0 माइनस 0 0 आ रहा है, राइट? सेकेंड पार्ट इज x प्लस x लेस देन 0, x लेस देन 0. दैट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. 0 x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और ट्वाइस x जब x लेस देन 0 आ रहा है. x लेस देन 0 आ रहा है. दैट मीन्स यहां पर जो डोमेन होगा, यहां पर ये तो 0, इस आंसर का ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है. कब? x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए, है कि नहीं? अब इसका आंसर अगर 0 हो जाए, यहां पर अगर 0 पुट कर दो, रूट 0, आंसर क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है कि नहीं? fx अनडिफाइंड तो नहीं आ सकता है. दैट मींस ये जो है ये हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर x लेस देन 0 के लिए ट्वाइस x आ रहा है. x लेस देन 0 के लिए क्या आ रहा है? ट्वाइस x आ रहा है. दैट मींस यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर वैल्यूज मिलेगा. आप लोग चेक भी कर सकते हैं. दैट मींस, है कि नहीं? अच्छा, अबाउट सेकंड केस में x का वैल्यू अगर मैं लेस देन 0 चूज करूं, लेस देन 0 चूज करूं, तो यहां पर देखो ट्वाइस x आंसर आ रहा है. अच्छा, यहां पर x का वैल्यू लेस देन 0 अगर मैं पुट करूं, माइनस वन चूज करते हैं. x का वैल्यू लेस देन 0 चूज करते हैं. 2 इंटू माइनस 1 आंसर क्या आ रहा है? -2. दैट मीन्स इसका आंसर -2 आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये जो x माइनस मॉड ऑफ x है, उसके ऊपर क्या साइन है? रूट साइन है. तो अब देखो यहां पर मैं एक लाइन यहां पर लिख रहा हूं. हियर x माइनस मॉड ऑफ x इक्वल्स टू ट्वाइस x व्हेन x लेस देन 0, है कि नहीं? तो दैट मीन्स x माइनस मॉड ऑफ x का आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, या फिर लेस इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 के लिए भी तो ये आंसर क्या है? 0 है ना. 0 के लिए भी क्या है? x इक्वल्स टू 0 पुट कर तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. देखो यहाँ पर 0 के साथ इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर लेस या फिर 0 से छोटा आएगा या फिर 0 के साथ इक्वल आएगा. बट जब हम लोग यहाँ पर रूट यूज कर देंगे x माइनस बॉक्स ऑफ x,
जब ये चूज कर देंगे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू, तब इसका आंसर जो है लेस इक्वल्स टू 0 कभी आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर x माइनस मॉड ऑफ x के जगह अगर लेस देन 0 कोई भी पुट कर दूं, एफ एक्स क्या डिफाइंड होगा? यहाँ पर 1 बाई है, ये डिफाइंड होगा? नहीं होगा। नेवर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, नेवर बिलोंग्स टू द रियल नंबर। दैट मीन्स डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, डोमेन ऑफ इसका निकालना है आपको, है कि नहीं? तो मैंने देखा कि एफ एक्स जो दिया गया है, एफ एक्स में एक्स रिलेटेड टर्म क्या है, तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो यहां पर एक्स रिलेटेड टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉड डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर मॉड ऑफ एक्स के जगह एक बार प्लस एक्स लिख लिया, फिर माइनस एक्स लिख लिया, और 0 तो है ही ऑलरेडी तुम्हारे पास। तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर ये केस करने के बाद क्या क्या केस आ रहा है, x माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका आंसर भी 0 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? ट्वाइस एक्स आ रहा है। वो देखो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट मीन्स x का वैल्यू जब 0 से ग्रेटर चूज करेंगे 0 आ रहा है, x का वैल्यू जब 0 चूज करेंगे 0 आ रहा है। दोनों को कंबाइन करके x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, आंसर तो 0 आएगा, है कि नहीं? सेकेंड केस है x प्लस एस, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स, x लेस देन 0। दैट मीन्स x का वैल्यू जब लेस देन 0 पुट करोगे तब ये जो टर्म है ना, इसका आंसर क्या आएगा? ट्वाइस एक्स आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये दो केस हम लोग के पास है। फिर मैंने देखा x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 आ रहा है, किसमें? जब x का वैल्यू 0 या फिर 0 से ग्रेटर चूज कर रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 0 या फिर 0 से ग्रेटर चूज करेंगे। करने के बाद देख रहा हूं कि आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब फंक्शन की तरफ जाएंगे। फंक्शन तो यहाँ पर देखिए एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर रूट, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है फॉर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स इसके जगह तो हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते हैं, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये केस जो है नॉट एक्सेप्टेबल है कि नहीं? हो गया। फिर उसके बाद आओ ट्वाइस एक्स, x लेस देन 0, x लेस देन 0 जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तब इसका आंसर क्या आएगा? ट्वाइस एक्स आएगा। अच्छा, यहाँ पर x लेस देन 0 मतलब -1 चूज कर सकते हैं। तो जब x का वैल्यू -1 चूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 into -1 दैट इज -2, -2। दैट मीन्स ये -2 किसका आंसर आ रहा है? x माइनस मॉड ऑफ x का आंसर -2 आ रहा है कि नहीं? फॉर x इक्वल्स टू -1 आ रहा है। बट जब हम लोग रूट यूज कर देंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, रूट ओवर -2। रूट ओवर -2 के रियल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो x लेस देन 0 वाला केस है ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि x माइनस मॉड ऑफ x इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स कब होता है? जब x लेस देन 0 होता है कि नहीं? फिर उसके बाद मैंने देखा है कि x माइनस मॉड ऑफ x का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो x का वैल्यू लेस देन 0 कुछ भी यहाँ पर पुट करो, ट्वाइस एक्स इसमें बिठाओ, आंसर क्या आ रहा है? लेस देन 0 आएगा ना। यहाँ पर x का वैल्यू -1 पुट कर सकते हो, -2, -3, -4, -5, -6, -7 कुछ भी पुट करो, यहाँ पर ट्वाइस एक्स, इसका आंसर तो ट्वाइस एक्स है ना। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा, हम लोग ये जानते हैं कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। रूट -2, रूट -3, रूट -4 ये सब जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स नहीं है, ये सब रियल नंबर्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग 11th में ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी तक ये याद रखो कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आ जाए इट इज नॉट ए रियल नंबर, ये जो है ये रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर रियल नंबर ही नहीं है रियल नंबर ही नहीं आए तो फंक्शन भी तो रियल नंबर में नहीं होगा, व्हिच इज इम्पॉसिबल, असंभव होता है ये, रियल नंबर में तो होना चाहिए, है कि नहीं। सो यहां पर देखा कि रूट ओवर x माइनस मॉड ऑफ x का आंसर रियल नंबर में नहीं आ रहा है।
फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पर फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स का कुछ वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, रियल नंबर में कुछ नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स डोमेन एक्स का वैल्यू ही तो तुम्हें चूज करना है, डोमेन निकालना है ना, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। डोमेन यहां पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद आओ और एक क्वेश्चन करेंगे यहां पर। जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो, ये डिनोमिनेटर में प्लस होगा, ये प्लस है कि नहीं? ठीक तरह से देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है, एक्स प्लस एक्स रिलेटेड टर्म तो ये है कि नहीं? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। मॉड एक्स की जगह में हम लोग प्लस एक्स पुट करते हैं। कब पुट करते हैं? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, दैट मींस आंसर इज ट्वाइस एक्स। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब फिर 0 होगा, क्योंकि यहां पर एक्स का वैल्यू जब 0 हो, 0 प्लस 0 0 ही होगा। फिर उसके बाद x प्लस मॉड x के जगह में माइनस एक्स पुट करेंगे जब x लेस देन 0 हो, दैट मींस ये क्या होगा, ये होगा x माइनस एक्स, आंसर इज 0 जब x लेस देन 0 हो जाए। सो दैट मीन्स x का वैल्यू जब 0 पुट कर दे तब भी आंसर 0 आ रहा है, x का वैल्यू जब लेस देन 0 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर 0 आ रहा है, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इसका आंसर अगर 0 आ जाए तो हम लोग यहां पर ये फ्रैक्शन में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट तो 0 नहीं आ सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? हो गया? सो दैट मीन्स हियर x प्लस mod x, इसका आंसर कभी भी 0 या फिर 0 से छोटा नहीं आ सकता है, क्योंकि रूट का टर्म है। x प्लस mod x का आंसर 0 भी नहीं आ सकता है, तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेस देन 0 भी आ जाए तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस रियल नंबर में नहीं होगा, दैट मींस ये भी चूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी कौन सा रह गया है? ये रह गया है, देखो। तो दैट मींस x प्लस mod ऑफ x, यहां पर बाकी क्या है, इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। बाकी तो ये रह गया, ये भी हम लोग चूज नहीं कर सकते, ये भी हम लोग चूज नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि देखो दोनों का आंसर तो 0 आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग तो x का वैल्यू 0 से छोटा भी चूज नहीं कर सकते क्योंकि 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 भी चूज नहीं कर सकते क्योंकि 0 आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये लिख लिया, x प्लस mod ऑफ x नेवर लेस इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है? नाउ बाकी तो ये रह गया सिर्फ। अब इसमें आओ, इसमें क्या है, x प्लस mod ऑफ x इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, x ग्रेटर देन 0, दैट मींस 0 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू यहां पर पुट करो। यहां पर 0 से ग्रेटर 0 भी चूज नहीं करना है, 0 चूज कर दोगे तो यहाँ पर 2 into 0 आंसर 0 आ जाएगा। अब 0 जो है फ्रैक्शन में पुट करो 1 by इसका आंसर 0, दैट मींस क्या है, 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, 0 पुट नहीं कर सकते। x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चूज करना है, 1 सिंपल, 1 चूज करो, 2 into 1 2, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है कि नहीं? देखो x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 4 आ रहा है वैल्यू, रूट के अंदर हम लोग तो ये पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हियर x प्लस mod ऑफ x है, ये जो है रूट दे दो, इसका आंसर जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? रूट भी यूज कर दे, देखो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा सब, है कि नहीं? यहाँ पर 0 से ग्रेटर चूज करो, 1 चूज करना है, 2 into 1 2, 2 into 3 2 into 4, सब देखो ग्रेटर देन 0 वैल्यूज आ रहा है, तो रूट का आंसर भी ग्रेटर देन 0 वैल्यूज ही आएगा, है कि नहीं? अगर इसका आंसर जो है यहां पर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सो दिस आंसर इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये श्योर है। रूट यूज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, x ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर डोमेन क्या आ रहा है, यहाँ पर डोमेन क्या आ रहा है, सो डोमेन इज व्हाट, 0 से ग्रेटर, मतलब 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ओपन इंटरवल 0 के साइड में भी ओपन देना है, क्लोज इंटरवल
नहीं देना है। आप लोगों को मैंने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल समझाया था, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे सपोज ऐसा लिखा हुआ है 1 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब है x का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 1 और 2 के बीच में जो वैल्यूज है वो हो सकता है। तो उसको कैसे लिखोगे तुम, ये ओपन इंटरवल 1,2। और जब यहाँ पर ये इक्वल साइन दे दिया जाए तब दैट मीन्स x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 और 2 के जो जो वैल्यूज है उस वो भी वैल्यूज हो सकता है, उसमें तुम क्लोज दे दो। जब क्लोज ये जब इक्वल साइन रहे, है कि नहीं। तो यहां पर देखो हम लोगों ने ओपन इंटरवल लिया है, क्यों, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर 0 लो, 0 तो तुम लोग नहीं ले सकते हो। देखो x का वैल्यू 0 क्रॉस देके रखा है मैंने, x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, लेस देन 0 वैल्यू नहीं ले सकते हो। बाकी रह गया सिर्फ क्या, 0 से ग्रेटर चूज करना है, 0 से ग्रेटर। और इन्फिनिटी के साइड में तो सब ऑल टाइम आपको ओपन इंटरवल ही रखना है। दैट मींस डोमेन इज व्हाट, 0 to infinity, open interval 0 to infinity. Okay, very conceptual and very tough thing also. Okay, now next question, find the domain of next question लिखो, find the domain of find the domain of x equals to 1 by root over x minus box of x. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। 11th वाले जो है ठीक तरह से देखना उसको, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा टफ चीज है, आप लोगों को एकदम माइंडली देखना है, ठीक है। लेक्चर को सुनना है ठीक तरह से। अच्छा यहां पर देखो बॉक्स ऑफ x दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने बोला था, डेफिनेशन लिखाया था, एग्जांपल्स भी लिखाया था बहुत, है कि नहीं। अच्छा यहां पर मैं एक चीज कर रहा हूं, वो थोड़ा देखना आप, ठीक है। अच्छा x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो यहां पर देखो x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर, देखो यहां पर x का वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 चूज करूं, ग्रेटर देन 0 चूज करना है, कुछ भी वैल्यू चूज करना है, ग्रेटर देन 0 ही आपको चूज करना है, ठीक है। अच्छा ग्रेटर देन 0 चूज करना है, सो यहां पर देखो 1 चूज कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, है कि नहीं है। तो दैट मीन्स यहां पर देखो एक काम करते हैं, देखो यहां पर x इक्वल्स टू सपोज 1.25 चूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसमें बिठाएंगे 1.25 माइनस बॉक्स ऑफ 1.25। अच्छा बॉक्स ऑफ 1.25 का आंसर क्या होगा, 1.25 जो भी दो इंटीजर के बीच लाई करेगा वो ठीक नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर को कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स 1 को कलेक्ट करेगा। 1.25 माइनस 1 आंसर इज क्या, 0.25। सिमिलरली x का वैल्यू 3.75, कुछ भी चूज करो, कुछ भी यहां पर चूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो x का वैल्यू 3.75 माइनस बॉक्स ऑफ 3.75, तो दैट मीन्स यहां पर देखो 3.75 कहां से 4 और 3 के बीच लाई करता है, दैट मीन्स वो नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर को कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स 3 को कलेक्ट करेगा, तो दैट मीन्स 3.75 माइनस 3 आंसर क्या आ रहा है, 0.75, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर देखो यहां पर हम लोग जो भी यहां पर x का ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, सबका आंसर देखो
आंसर क्या क्या आ रहा है 0.25, 0.75, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो तुम, कुछ भी आंसर जो है देखना 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा, 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। यहां पर जो हम लोग x का वैल्यू चूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 वैल्यू तो चूज कर रहे हैं, वेरी गुड, बट x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब 1 भी तो ग्रेटर देन 0 है ना, 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा, देखो x माइनस बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1, ये भी ग्रेटर देन 0 ही है, 1 पुट करेंगे 1 माइनस बॉक्स ऑफ x, ये तो खुद ही इंटीजर है, ये तो बॉक्स के अंदर खुद ही इंटीजर है, तो वो तो खुद ही आएगा 1 माइनस 0 आ रहा है ना आंसर, देखो तो 0 आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है, देखो यहां पर 0 आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, या फिर x का वैल्यू 2 पुट करो, या फिर x का वैल्यू 3 पुट करो, या फिर x का वैल्यू 4 पुट करो, सबका आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यूज जो है 0 से ग्रेटर चूज करेंगे, ये तो ठीक है, बट हम लोग यहां पर इंटीजर वैल्यू चूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ मुझे डेसिमल वैल्यूज ही चूज करना है, x से जब ग्रेटर चाहिए डेसिमल वैल्यूज ही मुझे चूज करना है कि नहीं। अगर यहां पर मैं इंटीजर वैल्यू चूज कर दूं तो आंसर देखो 0 आ रहा है, दैट मीन्स किसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर अगर यहां पर 0 पुट कर दे 1/√0, आंसर अनडिफाइंड आ रहा है ना। x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर तो 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो कब 0 आ रहा है, जब x का वैल्यू इंटीजर वैल्यू चूज कर रहे हैं, तब इसका आंसर जो है 0 आ रहा है। क्लियर? फिर x ग्रेटर देन 0 केस तो गया, x ग्रेटर देन 0 केस गया, फिर आओ x लेस देन 0 केस में, ठीक है, x लेस देन 0 केस में आओ, ठीक है। तो x माइनस बॉक्स ऑफ x है, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू कोई भी माइनस 1.75 पुट कर रहे हैं, तो माइनस 1.75 माइनस ऑफ बॉक्स 1 माइनस ऑफ 1.75, तो 1.75 माइनस, अब बोलो माइनस 1.75 किसके बीच लाई करता है, इधर -2 इधर -1, वो कलेक्ट किसको करेगा, स्मॉलर इंटीजर को कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स -2 को कलेक्ट करेगा। सो दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, देखो -1.75 प्लस 2, दैट मीन्स 0.25 प्लस ही आ रहा है, प्लस 0.25 आ रहा है। देखो यहां पर कुछ भी तुम पुट कर सकते हो, -2.25 चूज करो, क्या आएगा, तो यहां पर -2.25 x का वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, तो बिठाओ इसमें, ये जो यही तो मेन फंक्शन है ना, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x, दैट मीन्स 2.25 -2.25 माइनस ऑफ बॉक्स के अंदर -2.25, तो -2.25 माइनस 2, अब बोलो -2.25 किसके बीच लाई करता है, देखो तो कौन सा कलेक्ट करेगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर को कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स -3 को कलेक्ट करेगा ये, तो दैट मीन्स क्या आएगा 0.25 सॉरी 2.25 माइनस है और इधर +3, दैट मीन्स 0.75। देखो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, यहां पर देखो आंसर क्या आ रहा है 0.25 0.75, ये भी आंसर जो है 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चूज करें, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चूज करें, तब भी x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 और 1 के बीच लाई करता है। x का वैल्यू लेस देन 0 भी पुट करें, x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 और 1 के बीच लाई करता है कि नहीं, 0 और 1 के बीच लाई करता है, 0 और 1 नहीं है, 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो 0 और 1 के बीच जो लाई करेगा वो सब रियल नंबर्स ही है कि नहीं। यहां पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एक केस यहां पर है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर x का वैल्यू लेस देन 0, कुछ भी हम लोग पुट करें, बट x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इंटीजर पुट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यूज पुट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली x जब लेस देन 0 ले
तब भी -1, -2, -3, -4, -5 ये सब वैल्यूज चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं इंटीजर पुट कर दूं तो इसका आंसर जो है x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर मैंने दिखाया है। x के जगह 1 पुट करो, 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1 तो खुद ही इंटीजर है, तो 1 माइनस 1 आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में पुट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड आ जाएगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, कुछ भी हो, इंटीजर वैल्यू चूज नहीं कर पाएंगे। इंटीजर वैल्यू के अलावा एनी वैल्यूज दैट वी कैन चूज, हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है? x से ग्रेटर भी जाओ, x से स्मॉलर, सॉरी 0 से ग्रेटर जाओ या फिर 0 से स्मॉलर आओ, इंटीजर वैल्यूज हम लोग यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू के अलावा जो जो वैल्यूज हैं एक सेट में, एक रियल नंबर सेट में, वो सब वैल्यूज हम लोग चूज कर सकते हैं। x का वैल्यू 0 चूज कर सकते हैं कि नहीं? 0 माइनस 0, 0 तो खुद ही के इंटीजर है, 0 माइनस 0 आंसर क्या आ रहा है? 0। डिनोमिनेटर 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 0 भी चूज नहीं कर सकते हैं। 0 भी तो इंटीजर है ना, इंटीजर चूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। रिमेंबर दिस थिंग, इंटीजर चूज नहीं कर पाएंगे। इंटीजर के अलावा x का वैल्यू कुछ भी हम लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, समझ में आया है? अगर कोई भी डाउट निकला, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम निकला, तो आप लोग, ये बहुत टफ लेक्चर है, ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से लेक्चर बनाऊंगा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तब, ठीक है? क्योंकि ये सब लेक्चर्स बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। देखो पसीना आ रहा है कि नहीं? गर्मी है बहुत, है कि नहीं? बहुत समझाना पड़ता है ना। फिर सो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिला? x का वैल्यू क्या चूज करना है मुझे? x का वैल्यू चूज करना है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 चूज करना है, बट इंटीजर चूज नहीं कर सकते हैं। दैट मींस x का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट इंटीजर चूज नहीं कर सकते हैं। इस सेट को कैसे लिखते हैं? कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी, मैंने बोला था कुछ भी मतलब रियल नंबर, कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट, छोड़ के मतलब माइनस देना है। किसको? इंटीजर को चूज नहीं कर सकते। इंटीजर सेट किससे डिनोट होता है? z, या फिर i से भी लिखा जाता है, i। तो दैट मींस ये डोमेन क्या होगा? r माइनस जेड, ये डोमेन होगा, है कि नहीं? तो आप लोग इसको ठीक तरह से सुंदर करके अभी लिखिए, ठीक है? ये तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। तो अब आओ, तो यहां पर देखो बहुत टफ चीज है कि नहीं? बट इजी तरीके से समझना है आपको, एकदम इजी करके सोचो, इजी करके आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर ऑल टाइम 0 और 1 के बीच ही लाई करता है, 0 और 1 के बीच लाई करता है when x greater than 0। Similarly x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 और 1 के बीच लाई करता है when x लेस देन 0। हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, वो सब एग्जांपल्स लेके जो लिखाया ना हम लोगों ने, वो सब लिखना है आपको, है? ये सब राफ में लिखना है, when x लेस देन 0। बट x माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है when x belongs to z। दैट मींस x का वैल्यू जब हम लोग इंटीजर चूज कर रहे हैं, कुछ भी मन में जो आए इंटीजर आप पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करो। देखिए -100 माइनस ये बॉक्स ऑफ x में क्या आएगा? -100। दैट मींस क्या? -100 माइनस प्लस 100, 0 आएगा ना? दैट मींस x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर इंटीजर पुट करो, इसका आंसर तो 0 आएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो पार्ट है वो तो डिनोमिनेटर में है, नेवर इक्वल्स टू 0। बट x माइनस बॉक्स ऑफ x नेवर इक्वल्स टू 0। सो x कभी भी z में बिलोंग नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज
ये मैसेज में जैसे लिखते हो ना BCZ, बिकॉज x माइनस बॉक्स ऑफ x इज इन डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर पार्ट। तो ये तो हम लोग जूनियर क्लास से ही जानते हैं, कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में रहे जीरो तो नहीं हो सकता है। सो अल्टीमेटली क्या आया, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चूज कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 से स्मॉलर चूज करते हैं, बट इंटीजर चूज नहीं कर सकते। सो डोमेन इज r लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0, कुछ भी r रियल नंबर, बट एक्सेप्ट z। सो डोमेन इज r माइनस z। डोमेन इज r माइनस z। ओके, ठीक है, आएगा। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of fx equals to, find the domain of fx equals to 1 by root over x plus box of x। फिर से देखो, थोड़ा डिफरेंस है, बीच में माइनस था अभी प्लस आ गया है कि नहीं। तो हम लोग फिर से थोड़ा एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स जो लेके देखेंगे, दो केस लेंगे, एक x से ग्रेटर देन 0, x से स्मॉलर देन 0। दो केस ले लो, x ग्रेटर देन 0 और x स्मॉलर देन 0, दो केस ऐसे ले लो, ये रफ वर्क होगा, है कि नहीं। क्या है, x प्लस बॉक्स ऑफ x, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर x का वैल्यू सपोज 1.75 चूज करते हैं, तो 1.75 प्लस बॉक्स ऑफ 1.75, सो 1.75 प्लस इसका आंसर क्या है, 1 है ना। ये देखो 1.75, ये 2, ये 1, स्मॉलर इंटीजर को कलेक्ट करेगा, क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज किया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये सबका डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है एक लेक्चर में, पूरा एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है, ठीक तरह से देखना है। देखो, आप लोग देख सकते हैं कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 1.75 1 होगा, तो आंसर क्या है 2.75, दैट मींस ग्रेटर देन 0 ही है कि नहीं। तो कुछ भी यहां पर x का वैल्यू सपोज 2.25 चूज कर रहे हैं, तो शुरू करो, यहां पर क्या आएगा 2.25 प्लस 2.25, तो क्या आएगा 2.25, इसका आंसर 2 है, दैट मींस 4.25, ये भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। क्योंकि ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना आपको, ये टर्म कहां पर है, ये डिनोमिनेटर पार्ट में है, डिनोमिनेटर पार्ट में है और रूट के अंदर है, रूट के अंदर आ रहा है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 केस तो एक्सेप्टेबल है, ग्रेटर देन 0 केस भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फिर एक्स का वैल्यू कुछ भी, यहां पर ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब लोग सर कुछ भी इंटीजर पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 2 सपोज पुट करो, क्या आएगा, देखो यहाँ पर x प्लस बॉक्स ऑफ x मतलब 2 प्लस बॉक्स ऑफ 2, आंसर क्या है 4, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं भाई, माइनस तो नहीं है ना बीच में, माइनस होने से तो 2 माइनस 2 हो जाता, आंसर 0 आ जाता, जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, बट यहाँ पर तो प्लस है, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यू चूज कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज द इंटीजर वैल्यूज हियर, ओके। सेम x लेस देन 0 पुट करो, माइनस 1.75, सो x प्लस बॉक्स ऑफ x मतलब क्या है माइनस 1.75 प्लस माइनस 1.75, दैट मीन्स माइनस 1.75 माइनस माइनस, ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस है, इसमें क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि देखो माइनस 1.75 किसके बीच लाई करता है, -1 और -2 के बीच, तो कौन सा कलेक्ट करेगा, स्मॉलर वाला को कलेक्ट करेगा, दैट मीन्स -2, दैट मीन्स माइनस 1.75 -2 -3.25, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, देखो किसका, इसका,
और ये इसके ऊपर तो देखो डिनोमिनेटर, ये इसके ऊपर रूट है, रूट के अंदर तो निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है, रूट के अंदर तो निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है ना भाई, है यहाँ पर कुछ भी रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर और कुछ भी वैल्यू चूज करो, इससे अगर भरोसा ना हो दूसरा कोई भी चूज करो। -2.25 क्या आएगा, देखो x प्लस बॉक्स ऑफ x, दैट मींस -2.25 प्लस बॉक्स ऑफ -2.25, दैट मींस -2.25 प्लस ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये देखो ये -2 और -3 के बीच लाई करता है, तो ये तो -3 कलेक्ट करेगा, दैट मींस -3। देखो प्लस माइनस 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 5.25 आ रहा है, लेस देन 0 केस आ रहा है भाई, यहाँ पर लेस देन 0 है कि नहीं, दैट मींस ये इसका आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, देखो लेस देन 0 आ रहा है। बट रूट, ये जो टर्म्स है रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आ सकता है, दैट मींस यहाँ पर मुझे क्या पता चला, यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, अच्छा इंटीजर वैल्यू यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो पॉजिटिव, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर चूज किया था ना, नेगेटिव इंटीजर चूज करते हैं, सपोज x इक्वल्स टू -2, तो आओ x प्लस बॉक्स ऑफ x, तो ये तो गया -2 और यहाँ पर प्लस देके बॉक्स के अंदर -2, तो -2 तो खुद ही इंटीजर है, वो तो खुद ही बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, -2, दैट मींस प्लस माइनस माइनस -2 दैट इज -4, निगेटिव वैल्यू आ रहा है रे भाई, दैट मींस यहाँ पर निगेटिव इंटीजर चूज नहीं कर सकते हैं, दैट मींस ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू लेस देन 0 हम लोग चूज ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स लेके हम लोगों ने देखा है, x का वैल्यू लेस देन 0 यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुझे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चूज करना है कि नहीं। अब बोलोगे सर x का वैल्यू ग्रेटर देन चूज कर रहा हूं, वेरी गुड, x का वैल्यू लेस देन 0 चूज नहीं कर सकता हूं, वेरी गुड, x का वैल्यू 0 चूज कर सकते हैं कि नहीं, करके देखो, पुट करके देखो, x प्लस बॉक्स ऑफ x 0, 0 प्लस 0, आंसर क्या आ रहा है 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नहीं कर सकते, x का वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं, सो दैट मीन्स हम लोग के पास सिर्फ एक ही केस बचा है, वो है x ग्रेटर देन 0, ना ही मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर सकता हूं, ना ही मैं x लेस देन 0 पुट कर सकता हूं, सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है यहाँ पर, एंड जो है x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 जो है उसमें इंटीजर वैल्यूज भी आएगा, सब वैल्यूज आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, +2 चूज करके देखा, ठीक है, आ रहा है ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, ना ही लेस देन 0 पुट करेंगे, ना ही इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर हम लोग थोड़ा भी ये जो जितना सारा लिखा है ना मैंने, वो सब लिखो रफ में, पॉज करो, पॉज करके फिर से लेक्चर सुनो, फिर से 2-3 बार सुनो लेक्चर को, है कि नहीं, बहुत टफ चीज है। तो यहां पर हियर x प्लस बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, when x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x प्लस बॉक्स ऑफ x लेस देन 0 आ रहा है, when x लेस देन 0, ठीक है कि नहीं, x प्लस बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, when x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर कौन सा एक्सेप्टेबल है, इसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट के अंदर है ना टर्म, सो यहां पर देखो, यहां से रूट x प्लस बॉक्स ऑफ x, अगर इस केस से हम लोग कंसीडर करें, x प्लस बॉक्स ऑफ x क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, दैट मींस इसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो अगर उसके ऊपर मैं रूट दे दूं, ये क्या रियल नंबर में बिलोंग करेगा, है कि नहीं, नहीं करेगा। अब इसको अगर ले लो, रूट x प्लस बॉक्स ऑफ x, देखो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो पुट करो ना यहाँ पर 0, देखो 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पर, रूट के अंदर 0 आ रहा है, सो इट इज
0. This implies 1 by root over x plus box of x equals to infinity. Okay, for x equals to 0. देखो ठीक है ना, देखो ये आंसर तो 0 आ रहा है, वेरी गुड. किसके लिए? फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए. ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 0 इसका आंसर 0 आ रहा है. बट यहां पर क्वेश्चन तो ये नहीं था, सिर्फ ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो 1 by 0 अनडिफाइंड आ जाएगा. इसके लिए x इक्वल्स टू 0 के लिए. सो ऐसे साइड में लिख लो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. यहां पर भी लिख लो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो बाकी रह गया सिर्फ एक इकलौता ये x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है व्हेन x ग्रेटर देन 0. सो 1 बाई x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा कब? व्हेन x ग्रेटर देन 0. ठीक है कि नहीं? सो यहां पर डोमेन, सो डोमेन 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, 0 टू इंफिनिटी ओपन होगा. ठीक है, डोमेन क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी इंटीजर भी चूज कर सकते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो. यहां पर ऐसे एरो देके लिखो, इंक्लूडिंग इंटीजर्स. ये समझने में आसान होगा. इंक्लूडिंग इंटीजर्स, जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी आसान हो जाएगा. इंक्लूडिंग इंटीजर्स. ओके, बट डोमेन क्या होगा? बस 0 से ग्रेटर, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, हो गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन आओ. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड डोमेन and range of fx equals to mod x minus 3. mod x minus 3. ओके, अब मॉड यूज कर दिया रे भाई, तो लेस देन 0 तो आ नहीं सकता है. मॉड का आंसर तो ऑल टाइम ग्रेटर देन 0 ही आएगा. ओके, यहाँ पर x का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं? x का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं? x का वैल्यू कुछ भी चूज कर लो, क्या होता है? x का वैल्यू कुछ भी आप लोग चूज कर सकते हैं मॉड के अंदर, आंसर जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? x का वैल्यू कुछ भी यहां पर चूज कर लो, मन में जो आए पुट करो यहां पर, क्या होता है? कुछ नहीं होता है. क्या होता है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, x का वैल्यू न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर तो केस यहां पर है ही नहीं, तो दैट मींस न्यूमरेटर में 0 भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है? x का वैल्यू 3 भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x का वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. पॉजिटिव भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो क्या होता है? तो हियर fx इक्वल्स टू दिस वन इज डिफाइंड, is defined when x belongs to real number. So डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा. कुछ भी x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. कुछ भी चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. 1 बाई ले लेते हैं. अब तो भाई ये फ्रैक्शन में आ गया. दैट मीन्स डिनोमिनेटर तो 0 नहीं आ सकता है. दैट मीन्स यहां पर डिनोमिनेटर कब 0 आता है? बोलो, डिनोमिनेटर जो है कब 0 आता है? ये बोलो मुझे, डिनोमिनेटर कब 0 आता है?
डिनोमिनेटर कब 0 आता है? जब x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। x का वैल्यू 3 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। अब x का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी पुट करो, आंसर 0 आता है? कभी भी आंसर 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। सो दैट मीन्स, अच्छा पहला का क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, उसका ठीक तरह से कर लेते हैं। Here f(x) equals to this one can be defined when x belongs to real number. So domain is what? Real number. रेंज यहां पर क्या होगा? रेंज मतलब f(x) के वैल्यूज। यहां पर x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये मॉड के अंदर है ना, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा। सो दैट मीन्स यहां पर f(x) ये इसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। न्यूमरेटर में है तो इक्वल 0 भी आ सकता है कि नहीं? देखो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? सो दैट मीन्स f(x) का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 भी आ सकता है। सो रेंज क्या आ रहा है यहां पर? 0 से ग्रेटर। f(x) का वैल्यू 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के साइड में तो ओपन इंटरवल देना ही है। अब 0 के साइड में ओपन देना है या क्लोज देना है? इक्वल साइन है, क्लोज देना है। दैट मीन्स रेंज यहां पर होगा क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। हो गया? ठीक है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 1 बाई कर दो, 1 बाई मॉड x माइनस 3। अब लाओ, अब यहां पर देखो f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1 बाई मॉड x माइनस 3। हियर मॉड ऑफ x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज x नॉट इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू 3। अब 3 के अलावा कुछ भी यहां पर पुट कर दो, 3 के अलावा यहां पर कुछ भी पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर देखो, यहां पर ये जो है 3 के अलावा कुछ भी यहां पर पुट करो, 0 आएगा कभी मॉड के अंदर? 0 तो नहीं आएगा। सो दैट मींस यहां पर डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा कि और कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी मतलब रियल नंबर। रिमेंबर दिस वर्ड, कुछ भी मतलब रियल नंबर। बट क्या पुट नहीं कर सकते? 3 पुट नहीं कर सकते, 3 यहां पर पुट नहीं कर सकते। तो यह तो गया डोमेन। नाउ मॉड ऑफ x माइनस 3, ये तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही आएगा, है कि नहीं? दैट मीन्स 0 दिस टू इंफिनिटी। ठीक है? है कि नहीं? अब थोड़ा यहां पर फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन चेंज करेंगे, जैसे 1 बाई x माइनस 3 मॉड आ जाएगा। ठीक है? यहां पर देखो, अगर मैं फ्रैक्शन चेंज कर दूं, फ्रैक्शन चेंज करने से ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। पहले तो ये फ्रैक्शन नहीं था, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? और यहां पर x का वैल्यू 3 तो चूज नहीं कर सकते हो। 3 के अलावा यहां पर कुछ भी पुट करोगे, आंसर जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? मुझे बोलो, कहां से कहां तक लाई करेगा? नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही सब आएगा। तो कहां से कहां तक लाई करेगा? एक्स का वैल्यू 3 से ऊपर कुछ भी पुट करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। 3 तो चूज नहीं कर सकते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है सब, है कि नहीं? 3 से छोटा चूज करो,
2, 2 माइनस 3, 1, मोड के अंदर -1 आ रहा है, दैट मीन्स 1, 1/1, आंसर क्या है 1। फिर -1 पुट करो, -2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहां पर देखो ये सब फ्रैक्शंस जो आ रहा है वो देखो किसके बीच लाई करता है, किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच लाई करता है कि नहीं, देखो तो 0 और 1 के बीच लाई करता है। 0 तो आई थिंक हो नहीं सकता है, 0 तो नहीं हो सकता है, बट हाँ 1 हो सकता है। जब x का वैल्यू 4 पुट कर दो, x का वैल्यू 4, तो 4 माइनस 3, 1, 1/1, आंसर 1 आ सकता है। दैट मीन्स यहां पर इस साइड में इक्वल तुम दे सकते हो। तो दैट मीन्स 0 लेस देन, ये क्या है fx है और ये क्या है 1 है। सो दैट मीन्स fx बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, 0 के साथ में इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल 0 to 1, 1 के साथ में क्लोज इंटरवल। सो रेंज इज 0, 1। देखो तो है कि नहीं, 0 से लेके 1 तक। दैट मीन्स यहां पर पहले तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ सकता है, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ये नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x नॉट इक्वल्स टू 3 हो, x का वैल्यू 3 पुट कर दे तभी तो 0 आ जाएगा ना। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 यहां पर पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिख लिया। तो दैट मीन्स डोमेन क्या आ जाएगा, r-3, मतलब ऑल द वैल्यूज कैन बी चूजन एक्सेप्ट 3, 3 चूज नहीं कर सकते, डोमेन निकल गया। अब रेंज में आओ, कोई भी मॉड वैल्यू का फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, 0 भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। बट जब फ्रैक्शन ले लेंगे, उल्टा कर दो, मतलब फ्रैक्शन कर दो, फ्रैक्शन करने से क्या आएगा, ऊपर 1 और नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये है कि नहीं। तो यहां पर x का वैल्यू तो तुम 3 चूज नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है, x का वैल्यू 3 चूज नहीं कर सकते। और 3 के अलावा कुछ भी यहां पर पुट करो, कुछ भी यहां पर पुट करो, 3 के अलावा कुछ भी पुट करो, देखो डिनोमिनेटर पार्ट जो है 1 से ग्रेटर ही आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट जो है 1 से ग्रेटर ही आएगा, 1 भी आ सकता है। तो जब 1 आ जाए, 1/1, आंसर इज 1, इसलिए देखो 1 के साइड में लेस इक्वल्स टू साइन दिया है कि नहीं। दैट मींस इसका आंसर जो है 1 के साथ इक्वल हो सकता है, कब, जब मैं x का वैल्यू 4 चूज कर सकता हूं, 4 माइनस 3, 1, 1/1, आंसर इज 1। तो दैट मींस 1 आ सकता है, बट 0 कभी नहीं आ सकता है कि नहीं, इसलिए देखो 0 के साइड में इक्वल साइन नहीं दिया है। सो यहां पर ये जो है ये fx है ना, सो दैट मींस fx 0 से लेकर कहां तक, लेस इक्वल्स टू 1। दैट मींस क्या आ रहा है, 0 के साइड में ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, 1 का साइड में इक्वल साइन है, दैट मींस 1 के साइड में क्लोज इंटरवल देना पड़ेगा। दैट मींस यहां पर रेंज क्या आ रहा है, ओपन क्लोज इंटरवल 0, 1 है कि नहीं, ठीक है। आएगा, क्या बोलते हो, आएगा कि नहीं, हाँ फिर नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू, फाइंड द रेंज ऑफ, डोमेन भी लिख लो, डोमेन एंड रेंज ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2। यहां पर fx क्या दिया हुआ है, 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। यहां पर x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या फर्क पड़ता है, न्यूमरेटर केस है, x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। डोमेन क्या होगा, कुछ भी, दैट मींस रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मन में जो है पुट करो, क्या फर्क पड़ता है। रेंज में आओ, रेंज निकालने के लिए, अच्छा मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड का फंक्शन है, ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर ही आएगा, लिख सकते हैं, 0 भी आ सकता है, जब x का वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 माइनस 2 0 आएगा ना, तो दैट मींस 0 आ सकता है,
और इन्फिनिटी की साइड में तो तुम्हें लेस देन ही देना है। अच्छा, यहां पर अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूं, सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, इधर ये माइनस मॉड x माइनस 2 और इधर 0 आ जाएगा। देखो ठीक है कि नहीं, माइनस ऐड कर दिया। माइनस ऐड करने से तो ऐसा होता है ना, जैसे सपोज x ऐसे 1 2 है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 इधर आ जाएगा, माइनस x और माइनस 1 इधर चला जाएगा ना, रिवर्स हो जाता है। तो वही लिखा है मैंने। अब हर एक के साथ 1 प्लस कर दो, हर एक के साथ 1 प्लस कर दो, तो क्या है, ये तो इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी माइनस करना है तो इन्फिनिटी आएगा रे भाई, है माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 तो माइनस इन्फिनिटी आएगा ना। तो ये क्या है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है, ये 1 है कि नहीं। सो दैट मीन्स एफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, बिलोंग्स टू, यहां पर ये ऐसे हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इस साइड में तो लेस इक्वल्स टू, तो माइनस इन्फिनिटी 1 के साइड में क्लोज देना है, ऐसे ओपन देना है। दैट मीन्स रेंज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। ठीक है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, देखो ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट आओ, फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ 1 बाई रूट ओवर x माइनस बॉक्स ऑफ x। इसका डोमेन हम लोगों ने निकाला था, रेंज भी निकाल लेते हैं, ठीक है, रेंज भी निकाल लेते हैं। वो रेंज देखो, हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, डोमेन निकालने के लिए, उसमें ही रेंज है, देखो ठीक तरह से आ जाएगा। यहां पर देखो, हम लोग जानते हैं वो डिस्कशन, देखो वी नो दैट x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जीरो और 1 के बीच ही लाई करता है कि नहीं। फॉर ऑल x का वैल्यू दिस रियल नंबर 0 और 1 के बीच ही लाई करता है कि नहीं। x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 और 1 के बीच ही लाई करता है। देखो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया था वहां पर, तो यहां पर x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू ऑल रियल नंबर है कि नहीं। तो ऑल रियल नंबर लेंगे तो वहां पर 2 भी तो होगा, x का वैल्यू 2 भी चूज कर सकते हैं। 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 माइनस 2 0 नहीं होगा क्या आंसर, तो 0 हो सकता है। हाँ, अगर आप यहां पर ऐसा ले लें जो कि डोमेन निकला था उसका क्वेश्चन में, देखो तब ये 0 से लेके 1 तक लाई करेगा, है कि नहीं। अब ये 0 से लेके 1 तक है, तो ये कंडीशन, डोमेन तो पहले हम लोगों ने निकाल के रखा था इसका, ठीक है, तो डोमेन वहां से कर लो, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, अगर मैं उसका भी फ्रैक्शन चेंज करूं, फ्रैक्शन चेंज करने से देखो क्या होता है, फ्रैक्शन अगर चेंज कर दो क्या आएगा। सपोज यहां पर देखो 1 लेस देन x लेस देन 2 ऐसा है। अगर मैं फ्रैक्शन चेंज करूं 1 बाई एक्स, तो ये क्या 1 बाई 2 और इधर 1 बाई 1 आएगा क्या। दैट मीन्स 1 बाई एक्स लेस देन हाफ। अरे ये कैसे पॉसिबल, हाफ से छोटा है, 1 से ग्रेटर है, ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग फ्रैक्शन चेंज करेंगे, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, जब आप लोग फ्रैक्शन चेंज करेंगे तब रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स ये 2 है ना, ये हाफ होकर इधर आ जाएगा, ये 1 बाई एक्स और ये 1 हो जाएगा, अब सही है। तो यहां पर अगर मैं फ्रैक्शन चेंज करूं
देखो 1 इधर आ जाएगा और इधर 0 1/0 होके उधर चला जाएगा, तो दैट मीन्स 1 x माइनस बॉक्स ऑफ x लेस देन इंफिनिटी, सो दैट मीन्स 1 लेस देन ये fx है और एक रूट भी है, रूट ही है, तो दैट मीन्स 1 बाई रूट भी लो, रूट ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगा, है 1 से ग्रेटर ही आएगा, सो दैट मीन्स 1 दिस fx दिस इंफिनिटी। ठीक है, हो गया, ठीक है। सो यहां पर fx कहां पर बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी, ओपन तो देना पड़ेगा, एक जगह भी यहाँ पर इक्वल साइन तो नहीं है, सो रेंज क्या है 1 इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी, बस हो गया 1 इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन तो पहले हम लोगों ने निकल रखा है, वो ऐड कर दो। अब जो है फाइंड द रेंज ऑफ, सेम क्वेश्चन ही है बट x प्लस लेना है, x प्लस लेना है कि नहीं। यहां पर देखो हियर x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर, x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। हम लोगों ने देखो डिस्कस किया है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर इक्वल्स टू 0 आएगा जब x इक्वल्स टू 0 ले, x प्लस बॉक्स ऑफ x का आंसर लेस देन 0 आएगा जब x लेस देन 0 ले, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है गिवन फंक्शन देखो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स 0 तो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, दैट मीन्स ये नॉट एक्सेप्टेबल। लेस देन 0 आएगा, ये जो केस है लेस देन 0 आएगा, रूट है ना, fx इक्वल्स टू क्या है, रूट है, रूट के अंदर लेस देन 0 केस एक्सेप्टेबल है क्या, नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी है हियर x प्लस दिस ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 इंफिनिटी जाएगा, है कि नहीं। तो फ्रैक्शन चेंज x प्लस बॉक्स ऑफ x, अब बोलो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, अब इसका फ्रैक्शन भी लेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे, ये कहां से कहां तक आएगा रे भाई बोलो। सपोज यहां पर x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक है, अब फ्रैक्शन ले लेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन जब लेंगे x का वैल्यू यहां पर क्या चूज करना है, इसमें इस केस में x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इस केस में ये जो है देखो, ठीक है ना, यही तो केस हम लोगों ने लिखा है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस x का वैल्यू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है कि नहीं। दैट मींस x का वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 से ग्रेटर लू, इसमें इंटीजर वैल्यू भी आएगा, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी आएगा, 0 तो कभी नहीं आएगा। देखो x का वैल्यू 0 तो यहां पर पुट नहीं कर सकते, 0 तो यहां पर इम्पॉसिबल है। अब 0 से ग्रेटर कुछ भी पुट करें, 1 1/1, ठीक है, आंसर 1 आ रहा है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो भी वैल्यू पुट करो, सब फ्रैक्शंस देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच है कि नहीं। ये 1/x 0 0 तो साथ इक्वल नहीं, क्योंकि इसका आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं,
बट हाँ 1 के साथ इक्वल आ सकता है। जब x का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं 1/1 आंसर 1 आ सकता है। देखो तो ऐसा केस होता है जब मैं फ्रैक्शन कर दूं 0 लेस देन 1/x लेस इक्वल्स टू 1 आता है कि नहीं, देखो जस्ट सी। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर 0 टू इंफिनिटी लाई करता है, दैट मीन्स एनी फंक्शन इज लाइंग बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। नाउ इफ आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फंक्शन, देन the range of that function will be 0 to 1 and the equal sign will be in the side of 1, है कि नहीं? So that is 1/x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 और ऐसे। So ये भी केस सेम ही है, तो ये भी क्या आ गया 0 और ये 1 के बीच लाई करेगा और x ग्रेटर देन 0। So 0 ये fx है, ये लेस इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है। सो देयर इज रेंज यहां पर 0,1। देखो तो ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? देखो है, ये सब मैंने अपने मन से बना के दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में और कुछ क्वेश्चंस मैंने मन से बना के दिया है। जैसे ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने दिया है जस्ट है। ऐसे बहुत सारा है क्वेश्चन मैंने दिया है बना के। कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा ना। देखो टायर्ड हो गया बहुत आज का लेक्चर जो है बहुत मेहनत लगता है एक लेक्चर देने में, ठीक है। सो समझ में आया? आज का लेक्चर जो है बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ओके, सो आप लोगों को ये पूरा लेक्चर जो है एकदम पूरा देखना है, एक एक वर्ड आपको सुनना है मैंने क्या बोला है, ठीक है। आज के लेक्चर के ऊपर ये मेन एडवांस के एग्जाम्स में 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा ही, श्योर ले लीजिए आप। अब 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर मिल जाए 16, 20 तो ये ऐसे ही मिल जाएगा। मेन एडवांस में अगर 16, 20 मिल जाए तो और क्या लगता है, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे। ओके, आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, बाय, जय हिंद।